A very good morning to all of you, class 12th. Today we'll be starting chapter 3, Deep Water, from your book Flamingo. The Deep Water chapter is written by, or the author of this chapter is William Douglas. So, before starting with the chapter, I would like to tell you about the author William Douglas. So, his full name is William Orville Douglas. He was born on October 16, 1898 and died on January 19, 1980. An American jurist and politician, served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. And this chapter is an autobiography of this man, of man and the mountains. So let's read the chapter. Come to page number 1, students. The chapter name is Deep Water, and it is written over here about the author. William Douglas, from 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating with Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Man and Mountain by William Orville Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talked about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Now, how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So here, students, in here the author of the chapter, William, he is talking about himself that was born in Maine, Minnesota, कि कैसे वो कहाँ बॉर्न हुआ था, मिनेसोटा, और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन करी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश में, देन इकोनॉमिक्स में उन्होंने करी. ही स्पेंट 2 years टीचिंग इन हाई स्कूल इन याकिमा. सो यूएसए की एक सिटी है एंड द सिटी नेम इज़ याकिमा. सो याकिमा इज़ अ सिटी इन यूएसए जहाँ से उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी. ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. टीचिंग करते करते वो परेशान हो गए और वो थक गए. उन्होंने सोचा आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. सो दैट इज़ वाई उन्होंने लीगल करियर के लिए आगे परस्यू किया. ही मैट फ्रैंकलिन डी. हु इज़ फ्रैंकलिन डी? रोजवेल्ट एट येल. वो वहाँ पे मिले फ्रैंकलिन डी से. फ्रैंकलिन डी इज़ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड अ फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और एडवाइज़र बन गए प्रेसिडेंट के और फ्रेंड भी. डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. और उस समय के इंडिविजुअल राइट्स कि डगलस जो है लीडिंग एडवोकेट थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म ऑफ लास्टिंग 36 years. 1975 में रिटायर हुए और पहले ऐसे लॉयर बने जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम अपनी सर्विसेज दी एज अ जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट. द फॉलोइंग एक्सेप्ट, और ये जो चैप्टर लिया गया है, इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन. उनकी एक किताब है मैन ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. ये चैप्टर इज पिकअप फ्रॉम दैट एंड इट रिवील्स हाउ एज यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल. और ये रिवील करता है हमको ये चैप्टर कि किस तरह एक यंग बॉय जिसका नाम है विलियम डगलस, वो नियरली एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचा. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर ही फाइनली ओवरकेम इट. इस चैप्टर में विलियम डगलस ने खुद के बारे में बताया है बिकॉज दिस चैप्टर इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी जिसमें उन्होंने बताया दैट हाउ ही फाइनली ओवरकम्स हिज fear and his fear of water. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. और अब आप
इस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में ये पढ़ेंगे कि किस तरह विलियम डगलस जो है उन्होंने अपने फियर्स को ओवरकम किया. सो लेट्स बिगिन विद अ चैप्टर हियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to pool. So here in these lines students, जो विलियम डगलस हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं. इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. ये सब कुछ कब हुआ था? जब वो 10 या 11 साल के थे. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब स्विमिंग सीखना शुरू करेंगे. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और जैसा वो चाहते थे वैसी अपॉर्चुनिटी, और उनको सिर्फ एक ही दे रही थी वैसी अपॉर्चुनिटी. दैट अपॉर्चुनिटी इज गिवन बाय YMCA in Yakima. The Yakima rivers was here. Treacherous means deceptive. Deceptive is like कभी भी वो जो है याकिमा की जो नदियाँ हैं वो कभी भी यू कैन से डिसेप्टिव इज़ लाइक कभी भी धोखा दे सकती हैं. मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट. उनकी मदर ने उनको इसके अगेंस्ट कंटिन्यूअली वार्निंग दी. kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और आज भी उनके माइंड में ये यादें ताज़ा हैं जो उनकी मदर बताया करती थी. बट द YMCA pool was safe. बट एज़ कम्पेयर टू रिवर, जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं विलियम डगलस कि रिवर के कंपैरिजन में किसी पूल में तैरना इज़ मच सेफर. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो एक पूल जो है वो 2 to 3 feet डीप हो सकता है. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, एंड दूसरी साइड पे वो 9 feet डीप होता है. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. इट आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. अब वो अपने बारे में कह रहे हैं कि फॉर दैट स्विमिंग पर्पस वो अपने लिए जो भी एक न्यू बिगनर्स होते हैं फॉर स्विमिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन दे डन फॉर देमसेल्व्स. So same those kinds of preparation is done by William Douglas for himself so that he can learn that swimming very well. So that is why he got a pair of water wings and then he went to the pools. So students, will continue our next part of the chapter that is page number your 24 in your next video. This is your first video of chapter Deep Water. Thank you all and stay safe.